we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Hello dear aspirants, welcome to the YouTube channel Mission Margdarshan. This video is about the preamble of our Constitution. Though it may be a very small topic, but for the UPSC and other competitive examination, this is a very important topic. Today we will be talking about the preamble of our Constitution, its text, its importance, and the significance it plays in our Constitution. Let's start the video. Let's start the video with the topic, what is preamble? If I tell you what is preamble, it is nothing but the summary of our Constitution. It tells us about what the Constitution wants to establish as its objective. N.A. Palkhiwala, a very renowned constitutional expert, called the preamble as the identity card of our Constitution. This is a very important statement for the civil service aspirant as well as other competitive aspirants. Why? Because a lot of time this type of question has been asked in the exam. Another very important point regarding the preamble is the objective resolution. The preamble is based on the objective resolution passed by our late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly. The next thing about the preamble is that the American Constitution was the first constitution to adopt the preamble in our Constitution. We know that there are two types of democracy. One, that is the largest democracy. Another, the oldest democracy. The American Constitution constitutes the oldest democracy, whereas the Indian Constitution constitutes the largest democracy. The American Constitution was the first to adopt the preamble. Following the same path, the Indian Constitution also adopted the preamble. Next, let's talk about the ingredients of our preamble. There are four kinds of ingredients in our preamble. The first is the source of the authority. Yes, the source of the authority of our Constitution is we, the people of India. The Constitution derives its authority from the people of the India. The second is the objective of the Constitution. The objective of the Constitution as established in the preamble is of justice, liberty, equality, and fraternity. The third ingredient of the preamble is nature of Indian states. The preamble tells us about the nature of Indian states as sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. The last but not the least ingredient of our preamble is the date of adoption. It tells us the date of adoption of the preamble as on 26 November 1949. Point to be noted, there are two dates in the Constitution that are very important. The first is the 26 November 1949 and the second date is 26 January 1950. The fourth thing about the preamble is the keywords. There are some very important keywords in the preamble. These are sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity, and integrity. Point to be noted, you have to remember these words, and secondly, you have to remember these words in order. The question has already been asked in the UPSC examinations in the jumble form. They have jumbled the words and they have asked which among the following words is correct. So this was about the introduction of the preamble. Alright. Let's talk about the meaning of these words. Very important. आपको ये word याद रखने हैं, इनको समझना है, इनको order में याद करना है. सबसे पहले let's talk about the word sovereign. What does the word sovereign mean? Sovereign means independent authority. Let's take an example. हाल ही में आप आजकल एक चीज़ देख रहे हैं about Indo-China relations. हमने इसमें अपने पिछली वीडियो में बात करी थी. That एक चीज़ आपने नोट जरूर करी होगी इसमें कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्रीज हैं, दे आर सोवरेन. हम ये इस टर्म को काफ़ी यूज़ करते हैं, सोवरेन. व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन? सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. इसका मतलब ये हुआ
कि वो कंट्री अपने डिसीजन लेने में खुद सक्षम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी दूसरी कंट्री उस कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देगी, करेक्ट। तीसरी चीज़, कोई भी कंट्री उस कंट्री को ये नहीं बोलेगी कि आप ये कीजिए, आप ये ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। इन शॉर्ट टर्म, कोई भी कंट्री उस कंट्री को डिक्टेट नहीं करेगी अपने टर्म्स पे। ये मतलब होता है सोवरेन का, दैट इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। चाइना हमें नहीं बोलेगा कि हमें क्या करना है, पाकिस्तान हमें नहीं बोलेगा कि हमें क्या करना है, हमें कोई और देश नहीं बोलेगा हमें क्या करना है। वाई? बिकॉज वी आर सोवरेन। हम अब 1947 से पहले के भारत नहीं है, हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। तो जैसे ही 1947 में हम आज़ाद हुए, वी बिकेम सोवरेन, वी वर नो मोर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश। ऑलराइट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द प्रियम्बल इज सोशलिस्टिक। इससे पहले मैं आपको सोशलिस्टिक का मतलब बताऊं, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड सेकेंड इज communistic socialism. Now if I give you an example of democratic socialism, that is India. If I give you an example of communistic socialism, that is China and Russia. मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो सोशलिज्म हुआ जहाँ पे आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में। अगर आप देखें बैंक्स में देखें, अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें, तो बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास पब्लिक बैंक्स भी हैं एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स भी हैं। अगर मैं बात करूं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की, सब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स का रोल होता है हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ही कम होता है। अगर मैं सीधे शब्दों में इसकी बात करूं तो वहां पे क्या होता है, स्टेट रूल होता है, स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है। स्टेट यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि द यूनियन गवर्नमेंट, करेक्ट। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस वर्ड सोशलिस्टिक इज दैट इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड सोशलिज्म. Our Prime Minister, our late Prime Minister Srimati Indira Gandhi, she said that our kind of socialism is a very different kind of socialism. It is not that kind of socialism जो हम चाइना में देखते हैं और जो हम रशिया में देखते हैं. हमारा क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. जी हाँ, ये वर्ड को आप बहुत ध्यान में रखिएगा, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो उस टाइम ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. सोशलिस्टिक वर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में आया. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस वर्ड को ऐड किया गया था. ये वर्ड का जो हमने जिक्र किया, दैट इज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, वो कब किया था, वो हमने किया था इन द ईयर 1955 इन द अवधि सेशन ऑफ द कांग्रेस, इन द अवधि सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अवधि सेशन हुआ था 1956 में, उसमें डिक्लेयर किया गया था कि जो इंडियन सोसाइटी होगी वो क्या होगी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगी. सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वो सोसाइटी होगी जहां पे सरकार किसके लिए काम करेगी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. आप देखेंगे जो भी सरकार योजना निकालती है वो किसके लिए निकालती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो हमारा सोशलिज्म किस टाइप का सोशलिज्म है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सेक्युलर. सेक्युलर का मीनिंग सिंपल ये होता है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. हमारे देश में अगर आप देखें तो जितने भी धर्म हैं उन सबको बराबरी से ट्रीट किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता. इंडिया डजंट हैव अ स्टेट रिलीजन. इफ आई टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्री, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका पाकिस्तान है. पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है, दैट इज इस्लाम. although it also says that it is secular, but it has a state religion as Islam. India doesn't have any state religion. Why? Because we are secular. For us all religions are equal. So this is the meaning of the word secular. The next word we have is democratic. This is a very important word. Democratic, democracy, ये एक ही चीज़ है. Democracy दो टाइप की होती हैं. पहला indirect democracy and second is direct democracy. इंडिया में जो डेमोक्रेसी है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है स्विट्जरलैंड. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां पे जो पीपल ऑफ द कंट्री होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, वो ही रूल बनाते हैं. दे डोंट नीड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दे मेक द लॉ, दे एनफोर्स द लॉ, दे इम्प्लीमेंट द लॉ, करेक्ट. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां पे लोग जो सिटीजन्स हैं, दे डोंट फ्रेम द लॉ. हाउ दे फ्रेम द लॉ, दे फ्रेम द लॉ बाय इलेक्टिंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थ्रू कास्टिंग देयर वोट. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम वोट देते हैं. जिनको हम वोट देते हैं वो पार्लियामेंट या रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाते हैं, वहां पे वो लॉ पास करते हैं और एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होती है वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है.
right? So these are two kind of democracy, direct and indirect. India has what? Indirect democracy. Next very important word is the republic. In a democracy, there are two types of constitution. The first is the monarchy and the second is the republic. मोनार्की का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मोनार्की का सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे ब्रिटेन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम. रिपब्लिक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो दैट इज इंडिया. है क्या ये? मोनार्की में बेसिकली क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स होते हैं वो होते हैं किंग और क्वीन, और इनकी एक हायरार्की फॉलो होती है. ऐसा नहीं होता इसमें कि जो सिटीजन्स होंगे वो वोट करेंगे और वही किंग या क्वीन बनेगा, नहीं. यहाँ पे इनका वंशवाद चलता है. वंशवाद का मतलब क्या हुआ, फैमिली में जो ब्लड लाइन है वही आगे कंटिन्यू करेगी आपकी किंग और क्वीन की पोस्ट के लिए. तो दे आर बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स. कुछ कंट्रियों में इनको सुप्रीम पावर्स दी जाती है, कुछ कंट्रीज में इनको जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी जाती है. इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है, हमारा रिपब्लिक है. यहाँ पे किंग और क्वीन और मोनार्की सिस्टम नहीं है. यहाँ पे क्या है हमारे पास, दी प्रेसिडेंट हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. करेक्ट. नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज जस्टिस. यू नो व्हाट इज जस्टिस? न्याय देना. ये जो वर्ड हमने लिया है, ये कहाँ से लिया है हमने? फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन जो हमारा 1917 में हुआ था. नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड. ये जो हमने ये तीनों वर्ड्स लिए हैं, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से इंस्पायर होके लिए हैं? दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. करेक्ट. अगला जो वर्ड हमारे पास आता है दैट इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? राइट कॉन्शियसनेस. राइट कॉन्शियसनेस मतलब अगर कोई इंसान है और उसके अंदर समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, सो देन ही हैज व्हाट? राइट कॉन्शियसनेस. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल. आपको ये समझने हैं, आपको ये याद करने हैं, आपको ये ऑर्डर में याद करने हैं. प्लीज रिमेंबर दैट दीज क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग. एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जो हमारा प्रीएम्बल था 1949 का जो प्रीएम्बल था, क्या वो सेम प्रीएम्बल था जो आज हमारे पास प्रीएम्बल है? इसका मतलब क्या, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में आज प्रेजेंट है, क्या वो सेम वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में प्रेजेंट थे जब हमने उसको 26 नवंबर 1950 में अडॉप्ट किया था? द आंसर इज नो. द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस एंड दैट इज ऑन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये जो हमारे पास अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. Why it is called as the mini constitution? Because it was this amendment जिसमें संविधान के सबसे ज्यादा क्या हुए? अमेंडमेंट्स हुए थे. So that is why it is called as the mini constitution. दो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. फर्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एंड सेकंड इज 44th अमेंडमेंट. सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा प्रीएम्बल 26 नवंबर 1950 को अडॉप्ट हुआ, तो उसमें ये सारे वर्ड्स नहीं थे. कौन कौन से वर्ड्स बाद में ऐड किए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट 1976? दीज वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ये तीनों वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में पहले नहीं थे. इन तीनों वर्ड्स को मैं आपको समझा चुका हूं. इन तीनों वर्ड्स को बाद में ऐड किया गया था. पॉइंट टू बी नोटेड, preamble has been amended only once, that is on 42nd amendment 1976. preamble को उसके बाद अमेंड नहीं किया गया है. रिसेंटली बीते कुछ सालों में बात चल रही थी पार्लियामेंट में कि जो वर्ड है हमारा सेक्युलर, उसको हमारे संविधान से हटा दिया जाए. काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंट में इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुई, बहस हुई. काफ़ी लोग इसके पक्ष में थे, काफ़ी लोग इसके खिलाफ थे. आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ड सेक्युलर हटा देना चाहिए? What will be the implications अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर का वर्ड हटा दें? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा अपने व्यूज. ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा. पहली चीज़ ये है कि जो प्रीएम्बल में जो भी चीज़ बताई गई है, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. जो हमारा पार्लियामेंट है वो अपनी पावर्स प्रीएम्बल से डिराइव नहीं कर सकता, और ना ही जो प्रीएम्बल में लिखा गया है वो पार्लियामेंट की पावर्स पे क्या करती है? अथॉरिटेटिव लिमिट लगाती है. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इट इज नॉन एनफोर्सेबल, इट इज नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बात हम कर रहे हैं किसकी? अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल की. सो इसी टॉपिक को आगे लेके जाते हैं. इज प्रीएम्बल अमेंडेबल? दूसरी चीज, इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी हमारे 1950s-60s के दौर पे. तीन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसके जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जो डिफाइन करते हैं कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट.
सबसे पहला केस जो हमारा आता है दैट इज बेरोबारी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है दैट इज केशवानंदा भारती केस। इस केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी पुरानी जजमेंट थी ऑफ बेरोबारी केस उसको ओवररूल कर दिया। ओवररूल करके एक नई जजमेंट निकाली दैट इज द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। पॉइंट टू बी नोटेड, इट वॉज इन द केशवानंदा भारती केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ड्रॉ करी थी। वो लाइन कौन सी थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि आप संविधान का कोई भी पार्ट चेंज कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हमें कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर पता लगते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर स्ट्रक्चर, सोवरेनिटी एंड एटसेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप कुछ भी चीज हमारे संविधान में चेंज कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको ना छेड़ा जाए। अगर कोई भी पार्लियामेंट का अमेंडमेंट ऐसा आता है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसा आता है जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस ऑर्डर को या उस एक्ट को या उस अमेंडमेंट को क्या कर दे, वो नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब कि खत्म करना। तो केशवानंदा भारती केस में हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की लाइन ड्रॉ करी गई थी, प्लस ये भी बताया गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट कैन बी अमेंडेड। नेक्स्ट केस जो हमारे पास जो लास्ट केस आता है LIC ऑफ इंडिया। इस केस में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस के ये जजमेंट को दोबारा से यहाँ पे लगा दिया था, लागू कर दिया था और कहा था कि प्रियम्बल इज अगेन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, therefore you can say that preamble is a part of the constitution and it has been amended once, that is on 42nd amendment 1976। आप देख रहे होंगे कि मैं इस अमेंडमेंट पे बहुत ज़्यादा गौर फरमा रहा हूँ, वो इसलिए है बिकॉज ये अमेंडमेंट है ही इतना इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली प्रियम्बल, इस अमेंडमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी पार्ट 4A में आती हैं, आर्टिकल 51A के तहत हमारे पास जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस में ऐड करी गई थी, हमारी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड करी गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। आप सोच रहे होंगे हमने इतना कुछ जान लिया प्रियम्बल के बारे में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सी, संविधान बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो क्या करते हैं कुछ लोग, those who are eager to know about the constitution, they first read about the preamble. Why? Because like I told you first, it is the summary of the constitution. संविधान में लिखा क्या है, जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें जो जो चीजें बारीकी से लिखी हुई है उन सब का संक्षेप आपका किसमें बताया गया है, प्रियम्बल में बताया गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी हाँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ it is the soul of the constitution. It is the most important and the most precious part of the constitution. It is the identity card of the constitution. Correct? So preamble के जानने से ही हम हमारे संविधान के बारे में जानेंगे कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। संविधान हमारा कहाँ से पावर डिराइव करता है, दैट इज फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी पॉजिटिव थिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं वो सारा आप किस में लगा दीजिए, आप प्रियम्बल में लगा दीजिए। ये है छोटा सा पैराग्राफ, बट छोटी चीज बड़ा धमाका वाली बात है। वाई? बिकॉज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रियम्बल, स्पेशली अबाउट दी व्हाट यू कॉल important words, the amendments, these cases। ये केसेस के बारे में हम बाद में डील करेंगे, इन केसेस के बारे में डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे। ये केसेस किस किस के ऊपर थे, किस चीज़ के बारे में थे, क्या क्या कंट्रोवर्सी थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अपनी जजमेंट दी है। सो वी विल टॉक अबाउट इट इन द डेडिकेटेड वीडियो। सो आज का वीडियो हमारा किसके ऊपर था, प्रियम्बल के ऊपर था। जरूर पढ़िएगा इस टॉपिक को, जरूर समझिएगा इस टॉपिक को, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा। you have the email, you have the contact। Do share this video, do like this video, do subscribe this video and do comment your views on this video. Till then, goodbye, take care.